گلشن کی ہماری ہے، کچھ اس طرح سے لٹے ہیں عالم میں، گزارتی ہے یہ دن رات روتے ماتم میں، جیے گی یہ دنیا کہ جن سے بھی اجری ہے مانگی اجرا، کوئی سی گلشن کی ہماری ہے، چلے جب یہ پیش کریں اور ان کا استقبال ایک بلند ترین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد. سربراہ مظلوم کربلا محترم سرکار سید الشہداء، مجھے انصاف سے بتا دو کہ سب مدینے جائیں گے، سب بدل جائیں گے، ایک ایسی ندیمہ ہے 4 سالہ بچی جسے وطن نصیب نہ ہوا، اجرکم اللہ وطن نصیب نہ ہوا، سکینہ جملے آپ کے خدمت میں عرض کر دوں، آج بھی سکینہ اسیر ہے، آج بھی سکینہ خیر خانے میں ہے، وہ منظر یاد کرے، اللہ تعالیٰ کہاں سے بتا چھوٹے کام زخمی ہے، نمازوں کے نشان ہے، نام نامقید ہے، اجرکم اللہ. سکینہ کے مسائل صبح بتا رہے ہیں، جناب سید سجاد کہتے کچھ دن آرام کرتے ہیں، بھیا کوشش کرتی ہوں، کوشش نہیں جانے کے بعد ہائے بابا کہہ کر اگر جانو سکینہ آرام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر کیسے آرام ملے مجھے مثال سے بتا دو. اگر کسی کے یہاں ایک میت ہوتی ہے تو بچوں کو الگ کیا جاتا ہے، آج سکینہ
ہاں ہاں ایک سب اور کی تو ابل سے آخر سے مجھ سے پڑا نچوڑ پڑے اندر تو لمبا نچوڑ پڑے جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذي عجب الله. مجلس میں آنے کے لیے آپ کی رضا بات کی بات ہے، پہلے یہ ضروری ہے کہ شہزادی کی مرضی چاہیے. صلوات پڑھو عظمت آل محمد پر. آ گیا میں اپنے موضوع کی طرف. سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں انا مدینہ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر کسی ملا نے کہا ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے، لیکن اس نے کہا ہے جس کی زبان پہ وہی کا پھیرا ہے. دیکھیے آج جو کچھ بھی ہے کائنات میں سب رسول عربی کا صدقہ ہے. زمین کی بستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، مسکن ماہی سے لے کر اوج ماہ تک، تات السرا سے لے کر اوج سریا تک تھی. المختصر جب میرا مولا کربلا کے میدان میں گیا بلند کیے، دعا کرنے لگی کہ میرے بابا سے مجھے ملا دے، پروردگار مجھے میرے بابا سے ملا دے. اسی اسنا میں دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ سکینہ کو کسی کے آنے کی خبر ملی. سکینہ نے جیسے ہی آنکھوں کو کھولا تو نگاہوں کے سامنے عجب منظر دکھا. کیا منظر سنو گے صاحب اولاد پہنچ جاؤ گے. سکینہ نے دیکھا شیو ہے جس کے ہاتھ میں کند خنجر اس سے تازہ لہو ٹپک رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اسی حسین کا سر جس سے ملنے کی سکینہ کو تمنا. جب جب اپنے بابا کو روتی شیل تماچے کبھی تاثرانے اور جو کونے زیادہ ایسی بھی ملاقات ہوتی ہے. لیکن دور چبوٹی کی ملاقات دوسرا مرحلہ چھوڑو گے پتہ نہیں کیسے سن پاؤ گے. مجھے معاف کر دینا، دنیا کہتی ہے رضا بھائی ایسے مسائل نہ پڑھو مر جائیں گے، بہت سخت مسائل پڑھا کرتے ہو. لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ کیا کربلا میں کم ظلم ہوا؟ 6 مہینے کا بچہ 3 بال کا تیر، کیا یہ سخت مسائل نہیں؟ یہ لائن جا گیا. سنو کہ اس نے کیا کیا؟ صاحب اللہ بنا اس نے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا، اٹھا کر سکینہ کو مارا. یہ پتھر سکینہ کے سر کے پچھلے حصے میں لگا، سکینہ کے سر کے پچھلے حصے میں لگا. سنو اللہ نے موضوع میں کربلا. سکینہ زمین میں گر گئی، سر حسین سکینہ سے چھوٹا کچھ قدم آگے گرا. مجھے انصاف سے بتانا چاہے وہ اولاد ہو، بچوں کو جب چوٹ لگتی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ اپنی ماں کو آواز دیتے، اپنے باپ کو آواز دیتے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرتے. سنو سکینہ کا منظر. سکینہ سے سر حسین چھوٹا، سکینہ اٹھی بہت کو آگے بڑھی. بڑھنے کے بعد سر حسین کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بیوی نے گرد و غبار کو صاف کیا. فکرہ سننا، شہزادی کہتی ہے بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اگر یہ لائن آگے بڑھا، اس نے سکینہ کو تماچا لگایا، سر حسین چھین لیا، سر حسین چھین لیا. اگر سن لیا اپنے پڑھنا گوش گشتہ برداشت نہیں کر سکو گے قسم خدا کی. بس تیسری اور آخری ملاقات. سکینہ سوئی نہ جانے کیسے، کچھ دیر کے لیے خواب میں بابا کو دیکھا. جیسے ہی بابا کو دیکھا نا بے چین ہو گئی بچی، تڑپ گئی بچی، مچل گئی بچی. رام بابا ہو گیا
خاندان میں یزید نے سنا یہ آواز کیسی ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ کہ بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ لیا ہے۔ کہا اسے سر بیچ لو۔ اگر سر کیسے گیا سنو گے، تم نے سنا ہوگا تشت میں سر ہے، اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے۔ سکینہ کے سامنے آیا، سکینہ نے سوچا کھانا ہے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا سے ملا دو، مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ جیسے ہی خدام نے کپڑے کو ہٹایا، سکینہ آگے بڑھی، سر حسین کو پایا اور باتیں کرتی ہے، بابا بابا تمہارے چہرے پہ یہ کس کا خون ہے؟ بابا بابا تمہاری داڑھی کس نے خراب کر دی؟ بابا یہ تمہاری پیشانی پہ کیسا نشان؟ سکینہ اس سر کو دے کر نشاب کی طرف گئی، رخسار سے رخسار کو لگایا، سکینہ رخسار سے رخسار کو لگایا، فریاد کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ شہزادی زینب آواز دیتی ہے، سکینہ کوئی آواز نہیں آتی، سکینہ کوئی آواز نہیں آتی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے، میرا سجاد جا کر دیکھنا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے سکینہ کو بلایا ہو وہ آواز نہ دے۔ ایک مرتبہ ہمارا چوتھا امام ہتھکڑی کو سنبھالے، بیڑی کو سنبھالے، توپ کو سنبھالے، آگے بڑھا، جیسا ہی سکینہ کو ہلایا تو میرے مولا نے ایک فکرہ کہا، سنو گے سنو ربی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربی اماں میری بہن اب اس دنیا میں نہ رہی، جا کر اپنے بابا سے کلثوم کی ہماری ہے، یہ بیویوں کے نہ کوئی عزیز باقی ہے، فقط ہے سانس نہ کوئی چیز باقی ہے، کچھ قال ابو عبداللہ علیہ السلام هل من ناصر ینصرنا۔ حضرات امام حسین علیہ السلام کا یہ قول بڑا مشہور ہے اور اکثر آپ نے اسے مصائب کے دوران سنا ہے۔ میں نے سوچا کہ اسی کے عنوان سے چند باتیں آپ سے کی جائیں۔ امام نے آخری وقت میں کہا حل من ناصر ینصرنا، یعنی امام نے جو تمنا کی ہے، جو خواہش کی ہے، جو امام نے اپنی تمناؤں کا اظہار کیا ہے، تو وہ ناصر کی تمنا کی ہے۔ امام نے ناصر چاہا ہے، ناصر مانگا ہے۔ میں جملہ بدل کے کہوں کہ امام نے ساتھ رہنے والوں کی تمنا نہیں کی ہے، ساتھ دینے والوں کی تمنا کی ہے۔ امام کو ساتھ رہنے والے نہیں چاہیے تھے، ساتھ دینے والے چاہیے تھے، اس لیے کہ ساتھ رہنے والے صحابی کہلاتے ہیں، ساتھ دینے والے ناصر کہلاتے ہیں۔ امام نے ناصر کی خواہش کی ہے کہ مجھے ساتھ دینے والے چاہیے، ساتھ رہنا کمال نہیں ہے، ساتھ دینا کمال ہے۔
इमाम है जिसे अल्लाह चुन लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करबला में हुसैन पर जान कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन के नासिर हैं, इन सबको अल्लाह ने चुना है। जैसे नबियों को नबूवत के लिए चुना है, इमामों को इमामत के लिए चुना है, मासूमों को इस्मत के लिए चुना है, रसूलों को रिसालत के लिए चुना है, नबियों को नबूवत के लिए चुना है, वैसे ही अल्लाह ने शुहदाए करबला को हुसैन की नुसरत के लिए चुना है। ये नुसरत हुसैन इत्तेफाकी ओहदा नहीं है, ये इंतखाबी ओहदा है। जिसे अल्लाह चाहता है वो नासिर हुसैन बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह नासिर को चुनता है और नुसरत कल पर तमाम नहीं हुई है, नुसरत आज भी जारी है। नुसरत कल पर खत्म नहीं हुई है, नुसरत आज भी जारी है। वो अलग बात है कि कल वाले नासिरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, कल वाले नासिरों जैसा कोई नहीं हो सकता है, उनके हम पल्ला कोई नहीं हो सकता, मगर नासिर आज भी मौजूद है। ये जो आप मेरे सामने है ये सब नासिर मौजूद है, नासिर आज भी मौजूद है। नुसरत तमाम नहीं हुई है, नुसरत आज भी जारी है। और नासिरों का खासा ये है कि अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। अब ये जुमला चाहे जैसे सुने, भाई जियारत कह रही अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। अब कल वाले नासिरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके हम पल्ला कोई नहीं हो सकता, मगर ये नासिर आज भी मौजूद है। जिसे अल्लाह चुन ले वो नासिर बनता है। तो अब आप जब भी जुलूसों में, मजलिसों में, फर्श अज़ा पे जब भी आइएगा तो खुश ना होइएगा कि आप अपनी मर्जी से आए हैं, फख्र कीजिएगा कि अल्लाह ने चुना है आपको। गौर कर रहे हैं, अल्लाह ने नुसरत के लिए चुना है। ये आप जो यहाँ आए हैं तो मर्जी से नहीं आए हैं, ये अल्लाह ने चुना है तो आप यहाँ पे आए हैं। तो आप समझे कि नुसरत हुसैन कितना अजीम होता है। और देखिए नासिरों का एक बड़ा मर्तबा है, बड़ी फजीलत है। करबला के शहीद ये भी नासिर हैं और आप जिक्र हुसैन के साथ नुसरत कर रहे हैं, जिक्र हुसैन के साथ नुसरत कर रहे हैं। अब कल वाले नासिरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, पहले ही मैंने कहा, मगर नासिर आप सब हैं। अब देखिए नुसरत में दोनों में फर्क है। कल की नुसरत और थी, आज की नुसरत और है। कल चूंकि लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे तो कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान दे दी जाए। उधर से तीर चले, इधर से जिस्म बढ़े, उधर से नेज़े चले, इधर से सीने बढ़े, उधर से तलवारें चले, इधर से गले बढ़े। ये कल की नुसरत थी। तो फिर ये आज के नासिरों पर क्या लाजिम, ये जो मेरे सामने नासिर मौजूद है, ये आज के नासिरों पर क्या लाजिम है। कल चूंकि नुसरत अलग थी, आज नुसरत अलग है। कल लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे तो कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान दे दी जाए। आज चूंकि लोग हुसैन की आजादारी के पीछे पड़े हैं तो आज के नासिरों पर लाजिम है कि ज्यादा से ज्यादा आजादारी की जाए। फर्श अज़ा बिछाना आज की नुसरत, अलम सजाना आज की नुसरत, हमारी बनाना आज की नुसरत, ताजिया बनाना आज की नुसरत, सबीले सजाना आज की नुसरत, जुलूसों में जाना आज की नुसरत, शब्बेदारियां करना आज की नुसरत, फर्श अज़ा बिछाना आज की नुसरत। कल की नुसरत थी जान देना, आज की नुसरत है आजादारी करना। तो चूंकि दोनों नुसरतों में फर्क है इसलिए नाम भी अलग अलग रखे गए। कल के नासिरों को अंसार कहा गया, आज के नासिरों को आजादार कहा गया। क्योंकि नुसरत में फर्क है तो नाम भी अलग अलग दिए गए। ये आजादार भी अंसार का ही दूसरा नाम है। तो नुसरत, इमाम हुसैन ने तमन्ना की है नुसरत की। नासिरों जैसा शहजादा भी है तो अकबर जैसा जवान भी है। हुसैन ने कैसी कुर्बानियां दी है। लीजिए मेरे अजीजों, बस 2 जुमले और सुनाऊंगा, गुफ्तगू को जल्दी से जल्दी समेट लूंगा। मेरे अजीजों याद रखिएगा, आप धूप में बैठे हुए हैं ना, ये शदीद धूप हो रही है, मगर ये धूप कुछ नहीं है, ये धूप कुछ नहीं। आप अगर आप तसव्वुर कर लेंगे तो रोते हुए उठेंगे यहाँ से। ये धूप कुछ नहीं है, ये अब तो बहुत इतनी ज्यादा शदीद धूप भी नहीं रही है ना, इतनी शदीद धूप नहीं रही है। अरब की जरा सोचिए वो चिलचिलाती हुई धूप, अरब की वो चिलचिलाती हुई धूप, मेरे अजीजों चिलचिलाती हुई वो अरब की धूप, और सैयद सज्जाद के हाथों में लोहे की हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां,
कभी लोहे को धूप में डाल के देखा है? अगर 4-5 घंटे लोहा धूप में पड़ा रहे तो उठाया नहीं जाता है, हाथ जल जाते हैं। अब अरब की धूप सोचते जाइएगा और फिर इस धूप का भी अंदाजा लगाते जाइएगा। बच्चन जुमले और मजलिस का खत्म हो रही मेरे अजीजों। तारीख कहती है कि काफिले को रिहाई मिली, बीबियां अमारी में बैठ चुकी हैं। लीजिए, शाम की औरतें रुखसत करने के लिए आई हैं। बीबी रबाब ने एक मर्तबा अमारी के पर्दे को खोला, शाम की औरतों को देखा, आवाज दिए, शाम की औरतों, जब तुम्हें अपने अपने कामों से फुर्सत मिल जाए तो किसी वक्त आना। कैदे सितम में मैं अपनी बच्ची को छोड़ के जा रही हूँ, उसकी लहद पर एक चिराग जला देना। मेरी बच्ची अकेली है, मेरी बच्ची कहीं डर न जाए। शाम की औरतों, सकीना तुम्हारे हवाले। अल्लाह अकबर। लीजिए, अब तारीख कहती काफिला चला, करबला आ गया, करबला काफिला आ गया। सुनेंगे अजीजों, जब करबला में काफिला आया तो बीबियों को एक एक मंजर याद आ रहा है। अब बीबियां देखती जा रही, एक एक मंजर याद आता जा रहा है। यहाँ पे मेरा अकबर जवान एड़ियां रगड़ रहा था, यहाँ पे कासिम के टुकड़े पड़े थे, यहाँ पे मेरे असगर की लहद बनी थी, यहाँ खैमे लगे थे। एक एक बीबी, सुनेंगे मेरे अजीजों, सुनेंगे मेरे अजीजों। मैंने बहुत पहले भी कहा था और ये कहता रहता हूँ कि बहुत सख्त मसाइब में नहीं पढ़ता हूँ जल्दी मेरे अजीजों, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि कुछ जुमले पढ़ने के लिए। मेरे अजीजों, एक जुमला मैं पढ़ता हूँ, मैं एक जुमला पढ़ता हूँ। आपने मौला अब्बास की शुजाअत तो बहुत सुनी होगी कि मौला अब्बास बहुत शुजा थे, बहादुर थे। इंसानी फितरत है कि जब इंसान किसी से जिंदगी में बदला नहीं ले पाता है तो वो सोचता है कि मरने के बाद हम बदला ले लें। अब सुनेंगे क्या हुआ है, बर्दाश्त कर लेना, कलेजा फट जाता है। मेरे अजीजों, जब काफिला करबला में दोबारा आया है, एक एक बीबी अपने अपने वारिस पर रो रही है। उम्मे फरवा कासिम का मातम कर रही है, उम्मे लैला अकबर पर रो रही है, उम्मे रबाब असगर का मातम कर रही है, ज़ैनब हुसैन पर गिरिया कर रही है। बीबियां एक एक को याद करके रोती जाती है। एक मर्तबा जब सब बीबियां सब पे रो चुकी तो ज़ैनब कहती है, मेरे लाल सज्जाद, ये बताओ मेरे गैरतदार भाई अब्बास की लहद कहाँ है? आपने सुना है ना कि मौला अब्बास बड़े तवीलुल कामत थे, कद बड़ा तवील था मौला का। अब सुनेंगे, आवाज दी, बताओ मेरे लाल, मेरे गैरतदार भाई अब्बास की लहद कहाँ है? मेरे भैया की तुरबत कहाँ है? चौथे इमाम कहा, कहते हैं, आइए फूफी अम्मा, हम चलते हैं चचा की कब्र पर। ये कहते हुए सैयद सज्जाद फुरात के किनारे लेके आए और एक छोटी सी तुरबत बनी हुई है, एक छोटी सी कब्र बनी हुई है, उसके किनारे खड़े हुए आवाज दी, फूफी अम्मा, ये है मेरे चचा की लहद, ये है मेरे चचा। जुमला सुनना अदादारों, बर्दाश्त कर लेना, ये है मेरे चचा की कब्र। सैयद सज्जाद ने जैसे ही ये कहा, ज़ैनब कभी कब्र अब्बास को देखती है, कभी सैयद सज्जाद को देखती है, कभी कब्र अब्बास को देखती है, कभी सैयद सज्जाद को देखती है। आवाज दी, फूफी अम्मा हैरत में क्यों है? आवाज दी, बेटा सज्जाद, मेरा भाई तो बड़ा तवीलुल कामत था, ये लहद इतनी छोटी क्यों है? आवाज दी, फूफी अम्मा, जब मैं बाए जाज लाशें दफनाने आया तो मैंने क्या देखा? जालिमों ने मेरे चचा के जनाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने अब्बा का दामन बिछाया, टुकड़े को समेटा, छोटी सी लहद। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा कोई गम न दे। मेरे जनाजे के टुकड़े टुकड़े, क्योंकि जिंदगी में कोई बदला नहीं ले सकता था ना अब्बास से दिलावर से। जालिमों ने मरने के बाद लाशे की बेहुरमती की। सुनेंगे अजीजों, तारीख कहती है कि काफिला, मेरे अजीजों, आप जब जियारत के लिए जाते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि सबसे ज्यादा करबला में रहे, सबसे ज्यादा करबला में रहे। नजब भी जाते हैं, सामरा काज़मैन भी जाते हैं, मगर काफिले वाले भी सोचते हैं सबसे ज्यादा करबला में रखा जाए। करबला में 5 दिन 1 हफ्ता ऐसे लोग रहते हैं, बाकी और जगहों पे 1 दिन 2 दिन रहते हैं। आप सोचिए, अहले हरम जब पहुंचे हैं करबला तो चाहिए तो यही था ना
कि एक हफ्ता रुकते, भाई का मातम बहन करती। ऐसा नहीं हुआ मेरे अजीजों। तारीख कहती है कि 20 सफर चेहलुम के दिन काफिला पहुंचा है और सिर्फ एक दिन रुके हैं, 21 को रुके हैं और 22 को सैयद सज्जाद ने कहा चलो हम सब मदीने की तरफ चलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीबियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बीबियां उठती थी फिर बेहोश हो जाती थी, उठती थी फिर बेहोश हो जाती थी। तो सैयद सज्जाद ने कहा अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, चलो काफिला चलता है। लीजिए मदीने काफिला आ गया। बस यहीं तक लाना था, 2-3 मिनट और दे दीजिए, बात तमाम हो रही है। काफिला मदीने की सरहद को खबर मिली। तारीख कहते जनाब मोहम्मद हनफिया गश खा के गिर पड़े। किसी ने खबर दी चौथे इमाम को, चौथे इमाम ने संभाला। एक मरतबा मोहम्मद हनफिया कहते हैं यबना अखी, ए मेरे भाई के बेटे, ये बताओ मेरा भाई कहाँ है? आवाज दी चचा पुरसा कबूल कीजिए, हम यतीम हो के आए हैं। सुनेंगे अजीजों, हम यतीम हो के आए हैं मेरे अजीजों। तारीख कहती, बस 2 जुमले और सुन ले, खत्म कर रहा हूँ। तारीख कहती है कि जनाबे सुगरा चली। जब पता चला कि काफिला आ गया तो बीबी सुगरा रवाना हुई, अपने घर से चली कनीजों के झुरमुट में। अब जो जनाबे सुगरा चली तो क्या देखा, दूर से एक खैमा लगा हुआ है और खैमे के बाहर कोई बैठा हुआ है। जनाबे सुगरा ने कनीज से कहा जाओ इससे कह दो थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट जाए, मैं अंदर चली जाऊंगी खैमे में, उसके बाद फिर यहीं पर आन के बैठ जाए। लीजिए सुगरा की कनीज ने कह दिया, मगर वो गया नहीं, जाने वाला बैठने वाला हटा नहीं वहाँ से, दोबारा कहा नहीं हटा, तीसरी बार का नहीं हटा। जब अब्बास का वास्ता दिया तो एक मर्तबा उसने अपनी कलाम किया, आवाज दी अपनी शहजादी को तुम खैमे में ले जाओ, अगर जुमला समझ गए तो रोते हुए उठेंगे। आवाज दी अपनी शहजादी को खैमे में ले जाओ, मैं अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़े लेता हूँ, मुझसे यहाँ से हटने के लिए ना कहो, मैं चेहरा मोड़ लूंगा, शहजादी को ले जाओ। इसलिए कि बहुत दिन बाद आज पहली मर्तबा अपनी मर्जी से बैठा हूँ, वरना जहाँ बैठता था जालिम ताजिया ने मार के उठा देते थे। बहुत दिन बाद पहली मर्तबा अपनी मर्जी से बैठा हूँ। लीजिए तारीख कहती है कि एक मर्तबा सुगरा अंदर खैमे में आई, उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया, सुगरा खैमे में आया तो कयामत हुई। बीबी जैनब से मुलाकात होती है, सुगरा बीबी जैनब से ही कहती है, आवाज देती है, बीबी ये बताओ मेरी फूफी अम्मा जैनब कहाँ है? शहजादी कहती है, सुगरा अब ये वक्त आ गया है कि तुम भी मुझे नहीं पहचान रही हो। आवाज दी, फूफी अम्मा ये क्या हुआ? कहा सुगरा करबला में भरा घर उजड़ गया, सैयदा की कमाई लुट गई। बस एक मर्तबा सुगरा ने एक को पूछना शुरू किया, फूफी अम्मा मेरा अकबर कहाँ है? का सीने पर नेज़ा मारा गया। मेरा कासिम कहाँ है? का लाशा पामाल हुआ। मेरे चचा अब्बास कहाँ है? बाजू कलम हुए। एक एक को पूछने के बाद एक मर्तबा सुगरा एक एक को देख रही है, कभी उम्मे लैला को, कभी उम्मे कुलसूम को, कभी उम्मे फरवा को। ज़ैनब कहती सुगरा क्या ढूंढ रही है? आवाज दी, फूफी अम्मा सब मारे गए तो मेरा असगर कहाँ है? आवाज दी सुगरा, असगर के गले पर तीर लगा। बस आखिरी फिक्रा सुन ले, मजलिस खत्म हो गई मेरे अजीजों। लीजिए सुगरा ने आवाज दी, मेरी सकीना का वो भी शाम में सो गई। सुगरा कहती है, फूफी अम्मा कोई न रहा तो मेरा भाई सज्जाद। आवाज दी, सुगरा जिससे तुम पर्दा करके निकल आई हो वो तुम्हारा भाई सज्जाद है। सुगरा आगे बढ़ी, बीवियों की चादरें आना शुरू, एक लंबी सी चादर आई, जनाब ज़ैनब ने लंबी सी चादर को उठाया और पैदवाने जिंदा ने शाम में सकीना की तुरबत पर रख दिया और कहा, सकीना तुम्हें पर्दे का बड़ा ख्याल था, इसलिए कि तुम्हारे सर के बाल छोटे छोटे थे, लिहाजा तुम अपना पर्दा अपने हाथों से करके लो। सकीना हमें चादर मिल गई है, सकीना हम वतन जा रहे हैं। अब सकीना से आवाज है, भूमि अल्लाह सकीना की वतन देखने नसीब कहाँ।
मुझे माँ का कसम चाहिए अगर बहन सुगरा को मेरा सलाम कह दीजिएगा। अदादारों नीचे रिहाई मिल गई है। अहले हरम करबला आए, करबला के बाद अहले हरम मदीने में, जैसे ही मदीने सरहद मदीना में दाखिल हुए, बशीर इब्न असलम की नुमाइंदगी में, बशीर इब्न असलम के हाथ में अलम है। जैसे ही मदीने की तरफ दीवार नजर आई, उनमें कुलसुम ने मसीहा पड़ा, मदीना तो जतना ला तकबलीना, ए मेरे रहमत के मदीने मुझे कबूल न करना। जब मैं यहाँ से गई तो हमारी गोदियाँ आबाद थी, जमाई हो तुम मैं उतर चुकी हो। हज़रत अल्लाह अजीब रवायत कहती है, एक मरतबा मदीना में काफिला रुका और रुकने के बाद रवायत कहती है, इमाम सैयद सज्जाद ने कहा बशीर जा और जाकर मदीने में हमारे आने की खबर कर दे। लीजिए जी वो सारे मसाइल छोड़ रहा हूँ। एक मरतबा मदीने में गए, शहर मदीने में मोहल्ला बनी हाशिम में बशीर पहुँचे। पहुँचने के बाद कहा ए मदीने वालों, हुसैन लुट के आ गए, हुसैन के हरम आ गए हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम आ गई है। नाम हुसैन रहे, ना अली अकबर रहे, ना कासिम रहे, ना अब्बास रहे। अजीजों इसी असना में जैसे ही बशीर ये ऐलान कर ही रहे थे, क्या देखा एक छोटा सा बच्चा निकल के बशीर के पास आया और कहा बशीर ये अलम तेरे हाथ में कैसे है? ये अलम तो मेरे पापा के हाथ में था। बशीर ने पूछा हे मेरे लाल तुम कौन हो? तो कहा मैं अब्बास का चश्मो चराग हो। बशीर ने बता मेरा बाबा कहाँ गया? तो कहा कि मेरे लाल तुम्हारा बाबा शहीद हो गया। अजय गोमल्ला दूर खली उम्मीद बलून जैसे ये सुना, एक मरतबा कहा कि बशीर तो क्या कहता है, क्या हुसैन शहीद हो गए? कहा कि हाँ हुसैन शहीद हो गए। तो कहा एक मरतबा नजर की तरफ रुख की उम्र बनी और कहा ए मेरे वाले वारिस, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, गवा रही हो मैं कयामत तक जो है अब्बास का दूध नहीं बख्शूंगी। अब्बास के रहते हुए मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। अली वो जैसे जुमला उम्मुल बनीन ने कहा बशीर कह रहे भी ऐसा नहीं है। अरे जब तक मेरा काजी सालिम था किसी ने हिम्मत नहीं थी तो हुसैन की तरफ मुड़ करके देखता। पूछा बशीर फिर क्या हुआ? कहा कि बशीर कहा कि उम्मुल बनीन शहजादी पहले गाजी के हाथ कलम हुए, उसके बाद गाजी के हाथ कलम हुए, उसके बाद गाजी के सर पे बोझ मारा गया। जब मेरा गाजी शहीद हो गया फिर हुसैन को शहीद किया गया। अदादारी में मानो में रवायत कहती है, अभी हरम के स्टोर पर होगा, अभी महल्ले बने हाशिम में खबर आम हुई कि इसी असना में छोटे छोटे बच्चे मकतब की छुट्टी हुई, स्कूल की छुट्टी हुई। एक मरतबा कुछ बच्चे जो है कोई अली अकबर के सिंह के बच्चे, कोई आमिर मोहम्मद के सिंह के बच्चे, कोई कासिम के सिंह के बच्चे आने के बाद अहले हरम में अपने अपने सिंह के बच्चों, कोई अली अकबर को तलाश कर रहा है, कोई आमिर मोहम्मद को तलाश कर रहा है, कोई कासिम को तलाश कर रहा है। किसी ने कहा अरे किसे तलाश करो? कहा कि मेरा दोस्त अकबर कहा, मेरा दोस्त कासिम कहा और मोहम्मद कहा।